साथ में क्लैपिंग। आगे। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी सर पर हाथ है अपना। ओ जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी हो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जाने शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहे जीतती रहे ओ। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी माँ, ओ माँ। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी फूंक से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। आगे अरे गाओ साथ में, अरे आवाज ही नहीं आती, गाओ। आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो तुम। आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो तुम। माँ मेरी माँ, मेरी माँ। अच्छा सब फ्लैश लाइट ऑन कर लो अपने फोन की, फ्लैश लाइट ऑन कर लो सब, पीछे सब ऑन कर लो और हाथ में वेव करेंगे सब ऑन कर लो सब। गाए आगे। तेरी बातों में अपनी हर एक मैं उलझन का हल पा लेता था। तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरे बातों में अपनी हर एक मैं उलझन का हल पा लेता था। ओ तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरा हिस्सा मैं, तेरा किस्सा मैं, जो सबको सुनाती हो तुम।
beautiful day of Women Achievers Award Season 6. Thank you so much, children. Alright, so a very, very warm welcome to each and everyone present here to Season 6 of Women Achievers Award. And we have our chief guest with us today, Diya Kumari ji, the very beautiful. And as we all know, she is the Deputy CM Rajasthan. So let's all applaud and welcome her. Along with her, we have शब्द कम पड़ जाते हैं जब सर को इंट्रोड्यूस करना हो. Our very respectable Satish Punia ji, he is here with us today to grace the program. So request you all to please put your hands together and welcome him as well. Empowered women, empower women. With these beautiful words echoing through the hearts and minds, we welcome you all to this Women Achievers Award. Today, the quote encapsulates the essence of our gathering, a celebration of women uplifting and inspiring one another to reach out. A tribute to the strength, resilience, and boundless potential of women everywhere. We can see it throughout the auditorium. So before we just start with the formal program, I would like to introduce you all a bit to Women Achievers Award. We've been doing it from last few years. This is season 6. We are doing it for the 6th time. And this is an initiative of Dr. Pooja Agarwal ma'am. She is the Vice President, Arya Group of Colleges. The only aim behind organizing this award is to felicitate, encourage and uplift all these women who are doing good work in their respective fields, and they stand as a motivation for other women to take a step forward and motivate the others to do good to themselves, to do good to the society and contribute. Thank you so much. And now I would like to invite on the dais Diya Kumari ji. She is a prominent Indian politician and a member of Bharatiya Janata Party. She needs no introduction, I guess. Welcome, ma'am. I would invite Satish Punia ji to please join us on the stage. He is a prominent Indian politician associated with Bharatiya Janata Party and former state BJP president. Welcome, sir. I would also invite Dr. Arvind Agarwal sir, President Arya Group of Colleges, and Dr. Pooja Agarwal ma'am, Vice President Arya Group of Colleges. I would also like to invite Dr. Surendra Sharma sir, Director Arya College. Sir, please join us on the stage. Dr. Himanshu Arora sir, Principal Arya College of Engineering, and Dr. Shailendra Shukla sir, Principal APGC College. And now I would request all the members on the dais to please proceed for lamp lighting. के कैंपस में पधारी हमारी आज की मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश की डिप्टी सीएम प्रिंसेस दिया कुमारी जी एवं हमारे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय से हमारे लिए समय निकाला और हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। साथ ही में आज के प्रोग्राम के हमारे बोर्ड मेंबर्स, जूरी मेंबर्स, विमेन अचीवर्स और गेस्ट, हमारी अपनी फैकल्टीज़ और हमारे भावी विमेन अचीवर्स, हमारे स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे
मैं आज जितने भी अवार्डीज़ को हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से फेलिसिटेट करने वाले हैं, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि आज हम सिर्फ आपकी सक्सेस स्टोरी को यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे, बट हम आपकी लाइफ जर्नी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आप वो लेडीज़ हैं जिनको बनने का सपना हर बच्ची देखती है, कुछ नया करने का, कुछ डिफरेंट करने का, कुछ रेजिलिएंट होने का एक सपना जो बच्ची देखती है। आप उनके इंस्पिरेशन हैं, रोल मॉडल्स हैं। इसी उद्देश्य से हम इस विमेन अचीवर अवार्ड्स को हर साल कराते आ रहे हैं। आप वो महिलाएं हैं जिन्होंने ना सिर्फ स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया है, ग्लास सीलिंग्स को ब्रेक किया है, कुछ नया और कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है, बल्कि साथ में इंडियन वैल्यूज, संस्कार, कल्चर, संस्कृति सबको साथ लेते हुए और इनोवेशन और मॉडर्निटी के साथ ट्रेडिशनैलिटी को बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हुए समाज में अपना एक मुकाम बनाया है। यू ऑल आर द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ प्रोग्रेस एंड चेंज, and you are the torch bearers of the opportunity and equality which would pave way for the future generations. आज हम यहाँ पर विमेन अचीवर अवार्ड का 6th सीज़न मना रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रिंसेस दिया जी आज दूसरी बारी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। हमने इन 6 सालों में करीब 250 से ज़्यादा विमेन अचीवर्स को फेलिसिटेट किया है जो अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये साथ ही हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर सतीश जी भाई साहब भी आज दूसरी बार हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। मैंने पिछले 10 सालों से दिया जी की पॉलिटिकल जर्नी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मैं जो सबसे ज़्यादा उनके बारे में अप्रिशिएट करती हूँ वो ये है कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जनता के बीच जाकर संघर्ष कर नारी शक्ति को साथ लेते हुए और उनको एम्पावर करते हुए अपने इस आज के मुकाम को हासिल किया है। जिस दिन उन्होंने राजस्थान स्टेट असेंबली में एज फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश किया था, मुझे बहुत गर्व हुआ था, क्योंकि बहुत कम है कि विमेन फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट पेश करती हैं और उन्होंने उस बजट के दौरान विमेन सेफ्टी, विमेन सोशल सिक्योरिटी, विमेन सेल्फ ट्रेनिंग एंड सेविंग बॉन्ड स्कीम्स के बारे में भी हम सबको बताया था। बहुत सारी स्कीम्स वो लेकर आई हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आर्या कॉलेज में भी विमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ावा दें और मेरा मानना है कि एजुकेशन से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता कि हम बच्चियों को एम्पावर करें, क्योंकि एजुकेशन ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डोर खोलती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लीड्स टू द फाइनेंशियल डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट योर लाइफ। जब आप अपने इंडिपेंडेंटली अपने जीवन के फैसले ले सकते हैं तभी आप ट्रूली एम्पावर होते हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हम बच्चियों को इसी तरह की एम्पावरमेंट देने की कोशिश करें। हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी हम जुड़े हुए हैं और हम बच्चियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं और उनको टेक्निकली प्रोफेशनली एजुकेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ना सिर्फ एजुकेशन बट उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, क्योंकि सही माने में एम्पावरमेंट उसी को कहते हैं। अगर मैं बात करूं डॉक्टर सतीश पूनिया जी की, तो मैं ये कहूँगी कि उनकी स्टेट प्रेसिडेंसी के दौरान मुझे भी मौका मिला कि मैं स्टेट महिला मोर्चा टीम में वाइस प्रेसिडेंट पे मैंने काम किया और उस दौरान उनकी गाइडेंस के अंदर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभाला था और इनकी गाइडेंस में हमने कोशिश की थी कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर जी की स्कीम है, चाहे वो महिला समृद्धि योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे सुकन्या योजना है, इनके थ्रू हम लोग महिलाओं को, गांव की महिलाओं को हम पार्टी से जोड़ें और उसको आगे लेकर जाएं, क्योंकि जब विमेन एम्पावर होंगी तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और ये सच्चाई है कि 50% ऑफ द विमेन ऑफ द वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ विमेन। तो जब तक उनका हम अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड आई मस्ट से ही इज़ सच अ डायनामिक लीडर कि जब वो किसी ऑडिटोरियम में बैठते हैं किसी यूनिवर्सिटी के, तो वो इंटेलेक्चुअल टॉक से लेकर जब वो किसी गांव के में जाते हैं तो वहाँ पर एक आम ग्रामीण के साथ बैठकर भी उतनी ही सज्जता से बात कर सकते हैं।
इस स्टेज पे उपस्थित अगर मैं आज मेरे अपने हस्बैंड द प्रेसिडेंट ऑफ आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर अरविंद अग्रवाल को एक्नॉलेज नहीं करूं तो ये गलत होगा, क्योंकि ही इज़ द person who has given me the empowerment, and I believe that it is not easy. I have seen a lot of men around me. मैंने बहुत पुरुषों को देखा है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, बट आज भी in spite of the fact that people know Arya by my name, he always coaxed me to move forward and take the center stage. So hats off to him for having that trust and confidence in me. मेरा मानना है कि 60% आज भी हमारा देश गांव में बसता है और अभी भी गांव में रिसोर्सेज का बहुत अभाव है, और अगर हम आज की डेट में गांव में फैसिलिटीज़ और इक्वालिटी दे पाए तभी हम और इस कारवां को दिन ब दिन साल ब दिन आगे लेके जाए, तभी हम कह पाएंगे कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्नत हो रहा है और हम अपने देश को फिर से उसके गोल्डन एरा में देख पाएंगे। विमेन अचीवर अवार्ड के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी अवार्डीज़ को हम यहाँ आज फेलिसिटेट कर रहे हैं वो रोल मॉडल्स बने, इंस्पिरेशन बने आपके पीछे जो बच्चियाँ बैठी हैं, क्योंकि जब ही आपके बारे में जानेंगे सुनेंगे तो ये इंस्पायर होंगे कुछ बड़ा देखने का, सोचने का। और जब यही हमें नहीं पता चलता क्या ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, किसके जीवन की कहानी किसके लिए इंस्पिरेशन बन जाती है, एंड दिस इज एग्जैक्टली द पर्पस दैट वी लुक फॉरवर्ड टू इन ऑर्गेनाइजिंग द विमेन अचीवर अवार्ड्स की आपकी लाइफ जर्नी इनके लिए इंस्पिरेशन और रोल मॉडल बने। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने बहुत से लोगों को फेलिसिटेट किया है, जिसमें पद्मश्री गुलाबो जी, तनुश्री, फर्स्ट विमेन BSF कमांडेंट, छवि रजावत, बख्तावर सिंह, इन सबको हमने करा है। और सिर्फ मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि हम आज इस प्लेटफॉर्म से एक रिजॉल्व करें और एक रिकमिटमेंट करें कि हम लोग जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे और हम लोग विमेन को सपोर्ट और अपलिफ्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी विमेन आर द कॉज ऑफ नॉट लेटिंग अदर विमेन कम फॉरवर्ड। सो दिस इज द काइंड ऑफ commitment I am looking forward from you all on this special day. Once again congratulating all the women achiever, and I would like to close with a quote. अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच न दे हमें, हम मंच अपना बना लेंगे। जो कहते खुद को सितारा हैं, जगमगाकर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे। जय हिंद, जय भारत। And now I would like to invite Satish Punia ji to please come forward and grace the occasion. मैं अभी अरविंद जी इसकी रोबोट की तारीफ कर रहे थे कि अपने आप आएगा, आपको बुके भेंट करेगा। मेरे बैठे बैठे एक शरारत मन में आ रही थी, मुझे बहुत सारे कुंवारे लोग मिलते हैं आजकल, तो मैं पूछने वाला था ये किसी कुंवारे की शादी भी करवा देगा क्या। वो ब्लिंक कर रही है उसकी आई से। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं देख रहा था कि जब ये अच्छी प्रस्तुति हो रही थी पूरे देश भर के, और तो पंजाब को आप लोगों ने बड़े अच्छे से एंटरटेन किया, आपको पसंद आया वो। लेकिन मैं जब आगे बैठा था तो राजस्थान को देखते हुए सब खिल गए। हिंदुस्तान की नक्शे की खूबसूरती में और जो इंद्रधनुष की खूबसूरती को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है, उस प्रदेश का नाम है राजस्थान। और इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन, जीवन जहां उत्सव है वो राजस्थान है। और इस उत्सव को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हमारी एक लंबी परंपरा है। हमारा अपना इतिहास है, संस्कृति है, विरासत है, और उसी विरासत का प्रतिनिधित्व आदरणीय दिया कुमारी जी करती हैं। पूजा जी उनकी तारीफ कर रही थी। मेरा जब उनसे वास्ता नहीं था तो मैं तारीफ नहीं करता था, क्योंकि राजा महाराजाओं के बारे में तो धारणा थोड़ी अलग होती है, अपन लोकतंत्र वाले आदमी। तो मैं गांव से आया था, सिटी पैलेस का नाम सुना था और राजा महाराजा देखे नहीं थे, बाहर से निकलते थे तो भी डर लगता था।
और टिकट लेके खरीद के देखने में भी पड़ते थे तो हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन इस देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। उस लोकतंत्र के साथ में उस विरासत को जोड़ना, उस परंपरा को लोकतंत्र के जरिए जीवंत रखना, ये काम दिया कुमारी जी ने किया है। और इसलिए कि मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो ये सवाई माधोपुर की एमएलए थी और मुझे किसी कार्यक्रम में साथ थे, तो रात को 9 बजे इन्होंने कहा कि मुझे जल्दी जाना है, सवाई माधोपुर जाना है। तो कोई राजकुमारी रात को ट्रेवल करके सवाई माधोपुर जाएगी, ये थोड़ी अजूबा जैसी बात थी। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से वो काम किया, सांसद के रूप में काम किया। मैं गांव का आदमी हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने राजा और रंग का भेद मिटा दिया। एक दिन उन्होंने खुद ने कहा कि भाई साहब मैं आपके राखी बांधूंगी, तो मुझे लगता है कि भेद खत्म कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। अभी पूजा जी कह रही थी कि हाँ, पूजा जी के लिए बजा दो एक ताली। नहीं तो ये कहेंगे कि भाई साहब खर्चा तो मेरा, और तालियां आप आपस में एक दूसरे के लिए बजवा रहे हो। दिया कुमारी जी आपके लिए बजा रही है आप। लेकिन वो कह रही थी कि अरविंद जी के बिना सब कुछ अधूरा है। बात तो सही है, क्योंकि बटुआ तो उन्हीं का काम आता है। और दूसरा वो कह रही थी कि मुझे रोकते नहीं है। रोकने के लिए मोदी जी बहुत हैं। उन्होंने 33% आरक्षण कर दिया अरविंद जी। थोड़े दिन बाद पूजा अग्रवाल जिंदाबाद करनी पड़ेगी सबको। 33%, सामान्य बात नहीं है। लड़कियां ज्यादा है, बेटियां, मेरी बेटियां खूब बैठी हैं यहाँ पे। ये लड़के तो नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में 33% असेंबली में और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, ये लैंडमार्क है भारत की डेमोक्रेसी का और इंडियन पॉलिटिक्स का। मुझे लगता है कि जोरदार तालियों की दरकार है बेटियों की। मैं देख रहा था किस तरीके से स्टेज पे परफॉर्मेंस थी, तो पूछा तो कहा कि ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। लेकिन मंच पे जो परफॉर्मेंस थी वो लग रहा था कोई अच्छे प्रोफेशनल डांसर्स हैं। तो मैं वास्तव में जिस तरीके से पूजा जी ने और अरविंद जी ने यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि मेरा लगभग ज़्यादा नहीं तो 10-15 वर्षों का वास्ता है और किसी न किसी काम से मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जिस तरीके की मल्टी एक्टिविटी है और जिस पूरे कैंपस को और पूरे परिवेश को बच्चों की जिस तरीके से ग्रूमिंग होती है, वो आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की वास्तव में नायाब है। और मैं उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं कल बाघा बॉर्डर पे था और अभी वुमेन अचीवर अवार्ड की बात चल रही है और आपने कहा कि हमको बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे हैं। मुझे भी पता नहीं था जब मैं वो परेड देखने के लिए गया। आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी और नहीं देखी तो देखनी चाहिए। हालांकि मैंने तो कई चीज़ें नोटिस की। शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मैंने देखा कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान, दोनों के झंडे उस समय उतारे जाते हैं जब सनसेट होता है, उससे पहले। अच्छी परेड होती है, वो आपने कई बार लाइव देखी होगी, यूट्यूब पे देखी होगी, टीवी पे देखी होगी। तो मैं तो कोई दूसरी चीज़ें नोटिस कर रहा था, उसमें करते करते एक बहुत अच्छी चीज़ भी नजर आई। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये थी कि हिंदुस्तान का पंडाल तो भरा हुआ था और पाकिस्तान बड़ा खाली था। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो इस कार्यक्रम से ताल्लुक़ रखता है, वुमेन अचीवर्स अवार्ड से ताल्लुक़ रखता है कि आपने समाज की उन सब महिलाओं को जो अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं और उसमें एक विशेष उपलब्धि हासिल करती हैं, उसको इस मंच पर सम्मान मिलने का एक उपक्रम होता है। लेकिन मैं कल ताज्जुब कर गया कि जिसको पूरी दुनिया देखती है
वो जो BSF पंजाब के नाम से यूट्यूब भी है, चैनल है उनका, एक्स पे उनका अकाउंट है। तो कल जो मैंने परेड देखी, मुझे भी पता नहीं था, उस परेड का जो लीड किया कल 2 लेडी कांस्टेबल थी BSF की, जिन्होंने उस परेड को लीड किया। उसके बाद जब देखा तो बहुत सारी बड़ी संख्या में BSF की ASI, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल। मैं ये आप लोगों को निवेदन करना चाह रहा था कि अब हिंदुस्तान की फिल्म का नाम भी यही है कि हम किसी से कम नहीं। और बेटियों की स्थिति अब धीरे धीरे, मुझे लगता है कि कोई ज़माना था जब घूंघट से तो बहुत आगे आ गए, चूल्हे के धुएं से बाहर आ गए, क्योंकि उसके लिए तो देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 करोड़ ऐसी महिलाओं को एक तरीके से धुएं से मुक्ति नहीं दी है, जिल्लत से आज़ादी दी है, और इस देश में बदलाव का एक दौर शुरू हुआ है। जिस देश में बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, सामान्य बात नहीं थी, लेकिन उस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के स्लोगन ने ऐसा क्रांतिकारी काम किया कि आज उसी हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो पुरुषों के बराबर नहीं, 2% ज्यादा है। आज बेटियां और बहनें किसी डायस पर खुलेआम अच्छे तरीके से, हिम्मत के साथ, निडरता से मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर चर्चा करती हैं, यानी उस जड़ता को खत्म किया है। कोई फील्ड बचा नहीं जिसमें हमारी बेटियों ने, खेल का मैदान हो, मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था, हॉकी है तो, क्रिकेट है तो, और तो और पिछले दिनों तो फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए भी दुनिया की कुछ चुनिंदा देशों की महिलाएं, उसमें भारत की महिलाएं शुमार हैं जो फाइटर प्लेन उड़ाती हैं। इसलिए बदलाव आया है, सेना में भी बराबर अवसर मिले हैं। लोग कहते थे कि जब समानता की बात करते हैं तो ये डिस्पैरिटी क्यों है, सेना में महिलाएं क्यों नहीं जा सकती। आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। इसलिए मैं पूजा जी को, भले ही छोटा सा उपक्रम है, एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन कोई भी चीज होती है उसकी गूंज दूर तक जाती है। इस वुमन अचीवर अवार्ड की गूंज निश्चित रूप से समाज के हर तबके तक जाएगी। हालांकि इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी है, कोई भी प्रयास परिपूर्ण नहीं होता, न सरकार का न समाज का, क्योंकि हमने दूसरा पक्ष भी देखा है। आज भी इस देश में महिलाओं के प्रति जिस तरीके का रवैया समाज का है, कई बार शासन भी विवश होता है। एक बदलाव की उत्कंठा जरूर है, और मुझे लगता है उसमें सबके सहयोग की जरूरत है। छोटी सी बात, क्योंकि मैं कई बार, जैसा अरविंद जी कह रहे थे कि पूजा जी कह रही थी, तो मैं अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से समरस होता हूँ। तो मैं कई बार गांव में जाता हूँ, मजाक करता हूँ कि लोग यहाँ भाषण तो देते हैं, पर बेटी तो जाती है सरकारी स्कूल में और बेटा जाता है अंग्रेजी स्कूल में। मैंने कहा इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और फिर भी मुझे ताज्जुब होता है, क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो जब वहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सरकारी स्कूल की बेटी, उनकी संख्या बड़ी होती है इनाम लेने वाला की, जो अंग्रेजी स्कूल में बच्चे जाते हैं उनके मुकाबले। इस चीज में मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी हैं, कुरीतियां भी हैं, रूढ़ियां भी हैं, उनके आगे भी कुछ चीजों के बदलने की आवश्यकता है। आज मैं आप सब लोगों को, खासतौर पर पूजा जी को, अरविंद जी को और इनकी पूरी टीम को, जो मंच पर हमारे सब लोग बैठे हैं फैकल्टी के, यहाँ पर जिन लोगों को आज सम्मान मिलेगा, और जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो भावी पीढ़ी है भारत की, जो मेरे सामने बैठी है। मुझे याद आता है एक बार APJ अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बने, एक मछुआरे के घर में पैदा हुए, किस तरीके से उन्होंने भारत की परमाणु ताकत को बढ़ाया। राष्ट्रपति बने तो वो अक्सर स्कूल और कॉलेज में जाते थे, आपने देखा होगा। तो उनको अखबार के लोगों ने पूछा कि कलाम साहब, आप तो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के राष्ट्रपति हैं, स्कूल और कॉलेज में क्या देखते हो? उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों के चेहरों पर भारत का भविष्य ढूंढता हूं। और ये बात सत्य है। कुछ बरस पुरानी बात है, अमेरिका के प्रेसिडेंट
अमेरिकन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे, और जब मैं उस भाषण के अंश देख रहा था तो मुझे शोले फिल्म की याद आ गई। शोले फिल्म में गब्बर सिंह का एक डायलॉग है, याद है किसी को? सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा। 100 कोस दूर तक जब माँ अपने बेटे को सुलाती तो बोलती है सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा। तो मुझे लगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के स्टूडेंट्स को बोलते हुए बोला कि अमेरिका के विद्यार्थियों सावधान हो जाओ, हिंदुस्तान के विद्यार्थी आ रहे हैं। ये डर वैसा ही था जैसा गब्बर का डर एक माँ अपने बेटे को सुलाते हुए कहती है। इसका मतलब हिंदुस्तान की धाक और धमक दुनिया के सब कोने पे है। कल मैंने जैसे कहा कि मैं कश्मीर था, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के कुछ पुनर्वास की कुछ बात पे चर्चा करनी थी, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो पीढ़ी और जो कौम प्रताड़ित रही, कश्मीर फाइल्स आपने देखी हो कि नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। देश में कब क्या घटित होता है इस पीढ़ी को जानने की जरूरत है। आप पढ़िए, खेलिए, आनंद लीजिए, लेकिन अपने देश को अपने दिल में रखिए। आप वो देखेंगे तो आपको बरसों पुरानी उस तरीके की चीजों से वास्ता होगा जो आपके जेहन में होंगी, जिसके बदलाव के लिए आप लोगों को काम करना है। तो मुझे बताया कि ऐसी तकलीफ में भी आज सिलिकॉन वैली में भी कोई कश्मीरी पंडित किसी बड़ी एमएनसी का सीईओ होता है, तो ये सामान्य बात नहीं, हिंदुस्तान की प्रतिभा की ही ताकत है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जितने स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका एक खूबसूरत सा भविष्य है। भारत दुनिया के उस दौर में है कि जहां उसने अपनी साख बढ़ाई है। इतनी तेजी से किसी देश की जीडीपी नहीं बढ़ी। लोग कहते थे कि कोरोना में दुनिया में सबसे बर्बाद होने वाले देश का नाम हिंदुस्तान होगा, लेकिन 140 करोड़ के देश भारत के अपने वैज्ञानिकों की ताकत पर इंडिजिनस वैक्सीन बनती है, और केवल भारत को नहीं, दुनिया के अनेक देशों को बचाने का काम भी भारत की ताकत है। और इसलिए कोई क्षेत्र बचा नहीं। लोग कहते थे कि हिंदुस्तान की फौज 303 राइफल वाली फौज है। आज 411 तरीके के उपकरण भारत की फौज बनाती है और दुनिया के 25 देशों को सप्लाई भी करती है। इसलिए हिंद की सेना, भारत का लोकतंत्र, भारत का मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, ये दुनिया में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा हुआ है। और इसलिए जो सपना देश के प्रधानमंत्री देखते हैं 2047, जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी विकसित ताकत के रूप में खड़ा होगा, उस ताकत में यदि सबसे ज्यादा योगदान किसी का होगा तो इस नौजवान पीढ़ी का होगा, जो हिंदुस्तान के स्वाभिमान के लिए मजबूती से खड़ा होगा। आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। He is an opening batsman who always scores a century. How many of you agree with me? बहुत अच्छा बोलते हैं सतीश जी भाई साहब. Thank you so much for adding grace to the program. And now we are going to hear out the most awaited, from the most awaited person on the dais. I would request our Honorable Diya Kumari ji to please come forward and grace us with your beautiful words. Thank you. नमस्कार। अभी हमारे सतीश जी भाई साहब ने जो सेंचुरी लगाई, उसके बाद मुझे लगता है मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इतना अच्छा सबको, पुरुष है लेकिन मुझे लगता है सभी महिलाओं को उन्होंने इंस्पायर किया। तो मुझे भी किया, और मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद दूंगी इसलिए क्योंकि आपने मुझे कहा कि आपको आना है। वैसे तो हमारी डॉक्टर पूजा अग्रवाल से मेरा पुराना परिचय है और मैं यहाँ 1-2 बार आई हूँ। आज हमारे चेयरमैन जो आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हैं और जो फोर्स बिहाइंड द वुमन डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी, आपका भी मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ, और सभी महिलाओं की ओर से भी, क्योंकि आपने जो ताकत दी है हमारी पूजा जी को, और आज जो उन्होंने ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया है, और ना केवल इस्टेब्लिश किया है पर जो आप हर साल विमेन अचीवर्स को सम्मानित करते हैं, वो इतना बड़ा काम है, क्योंकि कोई महिला किसी और महिला को जब सम्मान देती है ना, तो उसका मज़ा कोई और ही होता है। पुरुष और बाकी इंस्टीट्यूशंस तो करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं हैं
जो दूसरी महिलाओं को रिकॉग्नाइज करती है और उनको सम्मान देती है। तो ये एक बहुत रेयर क्वालिटी है पूजा जी जो आप में है, और ये जो पीछे आपके हैं फॉस उनमें भी है, वो आपको ये ताकत देते हैं। तो आई थिंक ग्रेट कपल, इनको भी सम्मानित हमको करना चाहिए एज द कपल, द पावर कपल। यहाँ जिनको आज हम लोग सम्मान देने जा रहे हैं, अवार्ड्स जिनको मिलने वाले हैं आपके अचीवमेंट्स पे, वो सभी मेरी बहुत ही प्यारी बहनें मैं कहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है और राजस्थान को ही नहीं पूरे देश को आपने गौरवान्वित किया है। तो आप सभी को मैं बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी कि आप लोग इतना कुछ हमारे देश को वापस लौटा रहे हैं। क्योंकि एक तो हम लोग बहुत कुछ अपने लिए करते हैं, लेकिन जब हम लोग सोसाइटी को वापस उस चीज़ को रिटर्न करते हैं उसका मज़ा कुछ और होता है और बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में महिलाओं को, हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी सतीश जी भाई साहब ने आपको योजनाएं बताई, हमारी उपलब्धियां बताई, लेकिन जिस तरह से हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलती है हमारे प्रधानमंत्री जी के कामों से, वो एक अलग ही चीज़, क्योंकि वो मेहनत करते हैं तो हम सबको ये देखकर ये लगता है कि वो इतना कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आई थिंक उससे सबसे ज़्यादा हमको एक इंकरेजमेंट मिलता है और मैं उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम होगा। उन्होंने 33% आरक्षण जो हम सभी को दिया, वो बहुत बड़ा काम किया है। उसके लिए विल पावर की ज़रूरत थी, इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी। आई एम सो प्राउड, आई वॉज वन ऑफ द MPs हु प्रेस दैट बटन, बिकॉज उस समय मैं MP थी और हमने देखा विपक्ष नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं चाहता था। वो एक्सक्यूजेस बना रहे थे कि ऐसा क्या बोले जिससे ये काम नहीं। पर मोदी जी ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये करना है, महिलाओं को अधिकार देना है। कोई भी प्लेटफॉर्म होता है उस समय कहते हैं महिलाओं को इंक्लूड करो। महिलाएं क्यों नहीं मुझे आज दिख रही हैं? आपकी लिस्ट आ गई, महिलाएं क्यों नहीं है इसमें? जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री आप लोगों के लिए सचमुच इतना सोच रहा है, दिल से सोच रहा है, उसको तो मुझे लगता है कि हम जितना धन्यवाद करें कम होगा। वी आर वेरी वेरी लकी कि हमारे देश को ऐसा नेतृत्व मिला। मैं महिलाओं की तो तारीफ, मुझे लगता है अभी भाई साहब ने इतनी तारीफ हम लोगों की है, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बहुत बार मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि बहुत बार लोग सोचते हैं, और मेरे जैसी बहुत सारी और भी आप यहाँ पर लेडीज़ उपस्थित हैं जो हो सकता है कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती होंगी या ऐसी फैमिली से आती है जहाँ पर कई लोग सोचते हैं कि ये तो इस बैकग्राउंड से है, चाहे वो अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली से हो, चाहे वो और किसी प्रिविलेज बैकग्राउंड से हो। आप लोगों को कई बार किसी और नज़रिए से देखा जाता है, स्पेशली शुरू में, कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये इसको मिल गया क्योंकि ये इस फैमिली से आती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी, ऐसा नहीं है। जितनी आप प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हो उतना ही ज़्यादा आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप केपेबल हो। और ये इन 10 सालों में मैंने कोशिश की है, चाहे मुझे भाग भाग के राजसमंद जाना पड़ रहा हो या मुझे सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा इतने विकास के काम हुए कि इस बार जब मैं गई थी मैंने देखा था 5 साल में कुछ नहीं। दे हैड अ मेल MLA एंड हुज गवर्नमेंट देयर वाज, फिर भी नहीं करता। तो एज अ महिला वैसे भी आपको बहुत कुछ प्रूव करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ। लेकिन अगर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आओ तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, बिकॉज आपको ये अलग ही नज़रों से लोग देखते हैं। पर चाहे महिला कहीं से भी हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, किसी भी जाति से हो, हर बार हमको एक चैलेंज सामने आता है। हर बार हमको एक एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ती है कि हम पुरुषों से ज़्यादा कैसे हम लोग दिखाएं कि हम ज़्यादा कर सकती हैं, हम ज़्यादा केपेबल हैं। चाहे एकेडमिक्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, ऑफिसेज की बात करें जहाँ आप लोग काम करते हैं, हमेशा हमको इस चैलेंज को ओवरकम करना पड़ता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आज के युग में महिलाएं ये कर पा रही हैं एंड वी आर एबल टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग। आई थिंक हम लोग बहुत कुछ कर पा रही हैं और वो दिन दूर नहीं है जब हम पुरुषों को ओवरटेक कर लेंगे। ये 33% आई थिंक पुरुषों को लड़ाई करनी पड़ेगी कि वो लोग 33% में आ जाएंगे, हम लोग उससे ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये बहुत एक खुशी की बात है। एज अ महिला मुझे भी लगता है कि हमारे लिए ये एक गोल्डन एज है हम लोगों के लिए। इससे अच्छा
इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इससे पहले कभी भी नहीं थी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी क्रिएट की। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे हम लोग बात करें स्वच्छता अभियान की बात करें, महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए उसकी बात करें, हर प्रकार से आपने देखा होगा हर योजना में फोकस वुमन होती है। ये घर तक पानी जा रहा है, बेनिफिशियरी कौन है? सबसे ज़्यादा वुमन है, महिला है। शौचालय बन रहा है तो महिला बेनिफिशियरी है। डायरेक्टली अगर खाते में पैसा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा खुश कौन हो रही है? महिला हो रही है। सड़कें बन रही है तो भी महिला को सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसमें भी हम लोगों को सबसे ज़्यादा, चाहे वो सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट्स की बात करें, हम रेलवे लाइंस की बात करें, सबसे ज़्यादा तो हमको फ़ायदा हो रहा है उससे। पुरुषों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों की फिजिकल एबिलिटी जो है वो है, सच बात है। आप लोगों को पहले भी जब क्या फ़र्क पड़ता है, टूटी फूटी सड़कों में जाना आदत थी, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा और अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, मैं तो मानती हूँ। और हमारी गर्ल्स के लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन की हम बात करते हैं, बहुत फोकस है उस चीज़ पर, पहले नहीं थी। हम लोगों को शर्म नहीं आती अब कि हम इस बात के बारे में कहीं भी चर्चा करें। अभी मिस वर्ल्ड हुआ, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में चर्चा हुई थी उस प्लेटफॉर्म। तो ये सारी बातें जो टैबू थी, जिसमें हम लोग सोचते थे नहीं हम तो बोल ही नहीं सकते, वो सारी चीज़ें अब फोरफ्रंट में आ गई हैं, आगे आ गई हैं। अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते। हमको फ्रीडम मिल रहा है, हमको एक सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, हेल्थ के बारे में हमारी सोचा जा रहा है, सर्वाइकल कैंसर के बारे में इस बार बजट में जिक्र किया गया है, केंद्र बजट में, और हमारे यहाँ के बजट में भी, राजस्थान में भी। मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है कि इस बार महिलाओं को, चाहे महिला सुरक्षा की CCTVs की बात हो, चाहे आंगनबाड़ीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाने की बात हो, चाहे मार्शल आर्ट्स को एक प्राथमिकता देने की बात हो, हर प्रकार से, और स्कूल्स को अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो। स्पेशली गर्ल्स के लिए एजुकेशन तो वैसे भी फ्री थी, लेकिन अब PG तक फ्री कर दी गई। किसी भी तरह से हम लोग गर्ल्स को कम नहीं मानते। गर्ल्स आई थिंक आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। हम लोग तो देवी को पूजते हैं, विशेषकर राजस्थान में तो दुर्गा, काली, लक्ष्मी, हम इतना कुछ मानते हैं। नवरात्रों में हम लोग इतना व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो हमारे घर में जो देवी है उसको हम लोग जब मानेंगे, जब उनकी पूजा करेंगे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, तब जाके बदलाव आए। तो मुझे लगता है कि हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आज सिर्फ गर्ल्स ही नहीं है, बॉयज़ भी है, क्योंकि आप लोगों को चेंज बनना है, आप फ्यूचर है हमारे देश का। घर में आप लोग, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि घर में जब थक के वापस घर में जब पुरुष वापस आते हैं घर पे, तो सबसे पहले घर की जो महिला है वही पानी लाती है, चाय लाती है, और घर में जो बेटी होती है वही जाके कुछ ना कुछ लेके आती है। मुझे लगता है हमको चेंज वहाँ पर करना है कि जब हम घर आते हैं, हमारे घर के जो बॉयज़ हैं वो सबसे पहले जाके वो भी इक्वल काम करें घर के अंदर, क्योंकि बदलाव आएगा तो घर के अंदर आएगा। स्कूल सब कुछ नहीं कर सकता, स्कूल कर रहा है, गवर्नमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर घर का एटमॉस्फेयर वही रहेगा ना, तो सोसाइटी में बदलाव नहीं आने वाला। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर होम्स। व्हाट आर वी डूइंग? हम हमारे घर में जो उदाहरण पेश कर रहे हैं वही जाके इनके दिमाग में रहने वाला है। हम हमारी अगर वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी बेटी को रिस्पेक्ट नहीं करते, और बेटों को सजा बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि घर का राजा है, बेटे को अच्छी एजुकेशन देना, अब्रॉड भेजना, वो सब कुछ करना, बेटी को नहीं करना, उसकी तो शादी हो जाएगी, ये तो नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें हमको घर से ही बदलनी पड़ेंगी और घर का माइंडसेट बदलना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल में बदलाव आएगा और जेनरेशनल चेंज आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने घर में बदलाव करें। घर में जब आप आते हैं तो आप पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड करता नहीं है। रेपिस्ट हमारे घर से ही बन के निकलते हैं, बाहर कहीं सोसाइटी में नहीं बनते। घर में अगर महिला को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर वो लड़के घर में देखेंगे कि मेरी बहन को ऐसे ट्रीट किया जाता है, मेरी माँ को ऐसे ट्रीट किया जाता है, तो वो कभी बाहर जाके महिला को रिस्पेक्ट नहीं करने वाले। तो आप बदलाव घर पे करिए, सोसाइटी अपने आप बदल जाएगी।
तो मेरी बात मैंने कही, क्योंकि ये मैं सोचती हूँ सबसे महत्वपूर्ण बात है। वी हैव टू डू द चेंज, वी हैव टू बी द चेंज। तो धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात भी सुनी। आई होप मेरी बात कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी, कहीं ना कहीं आप मेरी बात को सीरियसली लेंगे और बदलाव करने की कोशिश करेंगे। मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर आज मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सब लोगों को सम्मानित कर सकूँ। थैंक यू पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Some beautiful women in front of me and some behind me, waiting to grab each other. Yes? Great. And before that, we would quickly felicitate our board members of Women Achievers Award. So I would like to call upon Deepa Mathurji to please join us on the stage and request Sir, ma'am to please come forward to felicitate them.
सिस्टम है भाई, चला दो फिर। Now I would like to call Arya Girls for Ramp Walk representing different states of India. रमन्ते तत्र देवता यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ जानो उनकी सब क्रिया निष्फल है। चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, है भागी कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। भागी कश्मीर है, भागी कश्मीर है, भागी कश्मीर है, भागी कश्मीर। तेरे ही पर्वतों पे तो फिरदौस रखा है, हाथ पकड़ चल के सितारों से मिलेंगे। तेरे ही पर्वतों पे तो फिरदौस रखा है, हाथ पकड़ चल के सितारों से मिलेंगे। चल चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, है भागी के कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। भागी कश्मीर है, भागी कश्मीर है, भागी कश्मीर है, भागी कश्मीर। किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनो वाला
अगर तेनू समझावा नी वो तो छड़ दे जो है तेरे नाम नखरे क्यों कर दिया मैनू जचदा नहीं कितना सवाल कर दिया ना मैं सुनदा नहीं और दस कितनी तारीफ चाहिए तेरी और दस कितनी तारीफ चाहिए तेरी